There's a sense of Dhaka that has changed. It's a controversial thing to say, but I see much more burqas on the streets in Dhaka today than I used to when I used to go to Dhaka with my father. Clothing is a matter of personal choice. Assertive way of putting out your religiosity. उसमें मैं कह सकता हूँ दावे के साथ 90% लोग इस पुस्तक के आने से पहले मारी छवि में क्या हुआ नहीं जानते। बांग्लादेश के विलेजेस में ऐसे एग्जांपल्स है कि आपके उधर दुर्गा पूजा के टाइम पे मुस्लिम विमेन मुस्लिम मेन जाके उधर बैठ रहे हैं, शायद पूजा नहीं कर रहे हैं। बंगालीज अपने कल्चर के बारे में इतना जोर जोर से बोलते हैं कि हम बंगालीज हैं, कल्चर, गाना है, टैगोर है, कि हमारा खाना है, माँ काली है। The idea of the Muslim is a big concern in Bangladesh. That what kind of Muslim do you want to be in Bangladesh? Bengal's psyche is very hard to get. I can argue that it is a psyche that even the most fertile political minds in the country right now do not often get right. तो बांग्लादेश एक ऐसा इस्लामिक कंट्री है जिसको अपना आइडेंटिटी पकड़ के रखना चाहिए कि 71 में हम ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बने क्यों, क्योंकि वो होप है पूरी दुनिया के लिए आज के दिन पे। और बांग्लादेश अगर फेल हो जाता है, बांग्लादेश में अगर ये हार्डलाइन इस्लाम अगर इस दूसरे सेंस ऑफ बांग्लादेश को हरा देती है जो ईस्ट पाकिस्तान जिसके बेसिस पे बना था, तो सच में बहुत ही होपलेस सिचुएशन है। Hello everyone, it's a bright and sunny afternoon, and here with us we have Deep Haldar, the author of two bestsellers. One is Blood Island and the other one is Being Hindu in Bangladesh, and Nishant Azad, the special correspondent with Organizer Weekly. We are going to discuss a lot of things today, his books, films, the political condition in India and West Bengal, and a host of other things that are happening in the country. You are from Bengal, born and brought up. Like I have noticed when we were young and we were living in a place that was very cosmopolitan, but over the years the demography has changed. I have witnessed it firsthand. There are many more Muslims, and Muslims who want to project their religion, and it's very in the face, the way they dress, the burqa, the skull cap, it's all out there. There is no, they don't want to be part of the crowd anymore. They want to stand out as Muslims. Do you think that this demography shift is a reality in Bengal, from where you stay, from how you've seen the city developing, evolving, changing? What is your stand on this? I think all things change, cities change. Kolkata has of course changed from the time when I was growing up to now. Yes, is there a demographic change in Kolkata and in Bengal? You need hard data firstly to pinpoint exact numbers. Without data, I think it's just your perception. I think one of the I can talk about what I see. I can talk about Amri, the private hospital where I take my father to now for checkups. There is a lot of people from the other side of the border, Bangladesh, who come in for checkups, not just in Amri, but in various hospitals, various hospitals in the city. Because I think the sense I get since I go to Bangladesh quite often is that the experience of going to hospitals is not that great in Bangladesh as it is in India. India has made very fast progress in the way treatment is meted out. So I think a lot of that is medical tourism, but there is also the question of people coming in illegally, people coming in, which both Nishant and I in fact have found out during our tours outside Kolkata. When we go to report,
go out to report, and I think Nishant has also worked on that. And it's very easy to get Aadhaar card, and it's in fact, it's not just that it's a big scam. How do people come in? Because there is patrolling at the border, so these are very contentious issues. How people come in. I will try to look at it slightly differently. I think, there is a sense now among Kolkata's and Bengal's Muslims, of Muslims who are coming out from outside West Bengal, outside India. I think the demographic change, which is of course happening, is not just a threat, quote unquote, for the Hindu in West Bengal. It is as much a threat for the Muslims of West Bengal, who see that their religion, their way of life is being hijacked by certain groups who were not from the city or the state. So I think that's a matter of concern, and it is something that even Muslim leaders and political activists across political parties are talking about. I think that's something which is of greater concern. Yes, since you say this, my friend who stays in Park Circus, she actually is a very, I'll use the word liberal Muslim, has had a very progressive upbringing, and she's not the I'll get into a burqa when I go out kind of a person. The family's not like that. And she tells me that when we were younger, we didn't see so much of burqas around us. We were Muslims, but we were living as Bengalis. And the locality where they were staying, there was a mix of Hindus and Christians and Muslims, and it wasn't like this. But now she's saying that a lot of people don't belong in the state, and they have come in and they are changing how Muslims are viewed. So I think this thing about people coming in from outside has affected how Muslims are being viewed in the city, because she is of the view that these are not Bengali Muslims, or these people don't belong, they were never there in Calcutta. So from where are these people just coming and mushrooming and spreading? Well, they are, for one, most of them are Bengali Muslims, because across the border in Bangladesh, everybody is Bengali. They speak the same language. But I can tell you why just Bengal. I have, thanks to my father, who was a visiting professor to Dhaka University quite often when I was growing up. I used to accompany my father. There's a sense of Dhaka that has changed. It's a controversial thing to say, but I see much more burqas on the streets in Dhaka today than I used to when I used to go to Dhaka with my father. Now my friends in Bangladesh, with them I often get into a debate. It's clothing is a matter of personal choice. However, having said that, is it a more assertive way of putting out your religiosity? It probably is. So I think for whatever reason, maybe because of the way the geopolitics is being shaped across the world, in Bangladesh there is a more, I don't know how to put it, there is a more, there is this move to go back to your, to certain aspects of your religion, which are perhaps more conservative than, because we see pictures where even after independence and a decade after the independence, you had these women wearing saris and going to the universities and being very I don't know, stylish, if I may use that word, stylish, and you could hardly make a difference between a woman dressed in a sari from Calcutta or West Bengal and Dhaka. But now you can. Yes, and it's a little more complex. Nishant and I keep talking about this than a simple Hindu-Muslim liberal conservative debate. Why? I'll tell you. I have seen in Dhaka, Nishant, you remember I told you about this. I have seen in Dhaka, in cafes and in Dhaka University campus, again a controversial thing to say, young women wearing hijab but also smoking a cigarette. Yeah. Right now, a woman smoking a cigarette, even if a Hindu woman smokes a cigarette, it may not be an ideal situation for many places. Like if you were to, I mean, we may be very open to seeing such scenes, but if, for instance, in Nishant's house, and we go to each other's house quite often, Nishant's house or my house, a woman walks in smoking a cigarette, I think there would be a little bit of shock from our parents.
right? So now imagine, now transfer this to a space which is predominantly Muslim, and a woman wearing a hijab and smoking a cigarette. Now there's a shock, right? Now who's giving the shock? The woman is giving you the shock. Yeah. By doing both, if she just wore the hijab, did not smoke the cigarette, or just smoked the cigarette, didn't wear the hijab, it would have been understandable. But you are pairing the hijab with the cigarette, which is a very interesting way of sticking on to a part of your religious identity, but also adopting a part of modernity. What you think is modernity. So I think those things are happening. But like I said, there was this story I read of a group of women protesting against the Sheikh Hasina government in Bangladesh, whose basic contention was that they would cover themselves from head to toe in a burqa. Okay, they would not even leave their faces uncovered. So only thing you can see of them, and they would wear black gloves. Only thing you can see of them is a slit in the eye. We discussed this story, and it was a. But then, if you have to travel, if you have to go to the airport, from there you have to fly out. You can't just show a passport and not show your face. And their entire argument was even if a female officer were to ask me to uncover my face, it's an attack on my religion, it's an attack on my identity. And it became a trouble not in West Bengal, it became a bit of a bother in Bangladesh, because of course you have to show your face. How else do you identify? You're also wearing gloves, and you won't even show your fingers or your palm. So these are things that not just West Bengal but even Bangladesh is grappling with. The idea of the Muslim is a big concern in Bangladesh, that what kind of Muslim do you want to be in Bangladesh? Deep, I want to ask you something. We are talking about Bangladesh right now, as well as Bengal. But मैं बांग्लादेश से रिलेटेड, बांग्लादेश क्यों बना? वो एक लैंग्वेज के बेसिस पे बना, और क्यों बना वी ऑल नो दैट. बट आई वांट टू आस्क यू कि यू सेड कि अभी वहाँ पे इस्लाम हावी हो गया है वहाँ पे, लेकिन बांग्लादेश इस्लाम नहीं था उतना पहले भी. इट वाज अ मुस्लिम कंट्री, बट उसमें इस्लाम उतना इम्पैक्ट नहीं था उसका. तो ये जो बदलाव हुआ बांग्लादेश बनने के बाद से, और जो वहाँ के युवा हैं जो कि भूल रहे हैं कि हम बांग्लादेश का क्रिएशन किस बेसिस पे हुआ, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है निशांत, और इस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास एग्जैक्टली मैं आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि देयर आर इंटेलेक्चुअल्स लाइक जेसाई या आनंद रंगनाथन जो ये आर्ग्यू करेंगे कि ये पूरा आपका जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग ही एक तरीके से गलत है, क्योंकि अगर वो इस्लाम था तो वो इस्लामी है. यू हैव टू गो बैक टू द फंडामेंटल्स कि इस्लाम क्या बोल रहा है. ये भी एक आर्ग्यूमेंट है. बट एटलीस्ट कुछ समय के लिए बांग्लादेश, इवन आज भी हम लोग जाते हैं, हम जानते हैं एक उधर एक सेंस है कि आप रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर उठ के एक कॉमन आइडेंटिटी पे बात करते हो. जहाँ पे हम भी देखे हैं कि दुर्गा पूजा में लॉट ऑफ मुस्लिम्स एंड नॉट जस्ट मुस्लिम्स इन हम और आप ही गए थे उधर. इवन इन विलेजेस लोग सोचते हैं, शहर में तो जनरली बहुत कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर रहता है, बट बांग्लादेश के विलेजेस में ऐसे एग्जांपल्स है कि आपके उधर दुर्गा पूजा के टाइम पे मुस्लिम विमेन, मुस्लिम मेन जाके उधर बैठ रहे हैं, शायद पूजा नहीं कर रहे, यस, और बैठ रहे हैं, और उधर आपका एक ही साथ दो चीज़ हो रहा है. वो रमज़ान भी है, लेकिन आके आप कवि ज्ञान भी आप सुन रहे हैं, और वो बहुत नेचुरली सुन रहे हैं. ऐसे नहीं सुन रहे कि चलिए हमें सेक्युलर होना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं क्योंकि आप बड़े हुए हैं उन लोगों के साथ, तो आपको लगता है कि ये भी उतना ही नेचुरल है जितना मेरे फेथ मेरे लिए नेचुरल है. तो बांग्लादेश एक ऐसा इस्लामिक कंट्री है जिसको अपना आइडेंटिटी पकड़ के रखना चाहिए कि 71 में हम ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बने क्यों, क्योंकि वो होप है पूरी दुनिया के लिए आज के दिन पे. और बांग्लादेश अगर फेल हो जाता है, बांग्लादेश में अगर ये हार्डलाइन इस्लाम अगर इस दूसरे सेंस ऑफ बांग्लादेश को हरा देती है, जो ईस्ट पाकिस्तान जिसके बेसिस पे बना था, तो सच में बहुत ही होपलेस सिचुएशन है. लेकिन क्या बांग्लादेश में, अब शेख हसीना है एज प्राइम मिनिस्टर, बट क्या बांग्लादेश में, जो आप सवाल पूछे दैट क्या बांग्लादेश में एक थ्रेट है, ऑफकोर्स एक थ्रेट है. हम तो जानते हैं, मेरा आप थे उधर, तो ये इलेक्शन तो शेख हसीना जी ने जीत गए, लेकिन जमात इस्लामी बांग्लादेश तो बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिकल और रिलीजियस फॉर्मेशन है, और वो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट उनको इस बार इलेक्शन से बाहर कर दिया, इलेक्टोरल प्रोसेस से. लेकिन उनके तो काफ़ी सारे मेंबर्स है, और वो बहुत पॉपुलर भी है. तो पॉपुलर किन में है? पॉपुलर तो लोगों में है ना. तो ये ऑब्वियसली ये ट्रू है कि आपके उधर दुर्गा पूजा होता है, और दुर्गा पूजा में सरस्वती पूजा होता है, ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में हम देखें, और धूमधाम से होता है. और उधर मुस्लिम स्टूडेंट्स जाके उस पूरा प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं. कभी कभी वो
जाके इस बार इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं एक आई मेट दिस मुस्लिम स्टूडेंट हु सेड कि उनका एक दोस्त था उस हॉस्टल में, हिंदू था, वो किसी कारण के लिए सुसाइड किया और वो पूजा कमेटी का मेंबर था और वो एक्चुअली डिजाइन कर रहा था कि वो प्रतिमा कैसे बनेगा। तो उनके मेमोरी में सरस्वती पूजा कमेटी में पिछले साल ये बंदा गया सिर्फ उसको याद करके कि वो जो काम कर रहा था वो काम इस साल मैं करूंगा उसके लिए। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन ये एक्स्ट्रापोलेट करना कि क्योंकि ये एग्जाम्पल्स है दूसरा एग्जाम्पल नहीं है, ये सही नहीं होगा। आपको याद है मेरे जो बीइंग हिंदू इन बांग्लादेश के बुक लॉन्च पे संजीव सान्याल जी ने एक चीज बोला था कि आप हार्ड डेटा देखिए। हार्ड डेटा तो आपको बता रहा है कि थ्रेट बहुत रियल है। मैं वहीं पे आऊंगा कि आपने डाटा की बात की और हम लोग सब देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे कितना हिंदू बांग्लादेश से बंगाल को आ रहे हैं, या फिर अगर आपने कुछ उदाहरण भी दिए जो वहाँ पे एक सद्भाव का माहौल है। कुछ हम लोग कुछ जैसे शाहिदुल है एक आदमी जो कि हिंदुओं के लिए काफी काम करता है, एक टेम्पल उसने अपने गांव में, पूरा काली टेम्पल जो कि बहुत ही एंशिएंट है, उसको रिकंस्ट्रक्शन का काम उसने किया है। लेकिन एक है कि कुछ लोग अपने लेवल पे कुछ कर रहे हैं, ठीक है, नो डाउट शेख हसीना और मोदी गवर्नमेंट जो है संबंधों को बहुत बेहतर करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रही हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट वहाँ इंडिया आउट कैंपेन चलता है, ठीक है, जो कि एक तो हिंदू रोज के बेसिस में वहां पे से आ रहे हैं, दूसरा इस तरीके का कैंपेन चल रहा है कि इंडिया आउट कैंपेन, कि हम वहां के इंडिया के प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, इंडिया के लोगों को बाहर। ये कैसे आने वाले दिनों में इसको कैसे चैलेंज देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत ज्यादा चैलेंज है। मुझे लगता है कि हमारे सारा इतने दिन तक हमारा सारा नेबरहुड में हमारा सारा फोकस था पाकिस्तान। मुझे लगता है फोकस चेंज करके बांग्लादेश पे होना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिन में बांग्लादेश बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। और ये काफी नोन इशू है क्योंकि एक जर्मन डॉक्यूमेंट्री बना था DW, वहां पे ओपनली दिखा रहा है कि ये रेडिकलाइजेशन कैसे बहुत तेजी से बढ़ रहा है इन बांग्लादेश। यस, एंड it's permeating into student groups, and there are students who like to sing and have bands, उन पे कर्टेलिंग आ रही है और बोल रहे कि नहीं ये गाना वाना ठीक नहीं है, आप लोग come to the mosque, listen to the lectures of the Maulvis. So this radicalization is happening at every stage and in people's personal lives also. I know people whose husbands used to be very, very modern and liberal, and they have actually asked their wives to start dressing in a certain way by covering themselves up in burqas when they step out, and not to watch television. They don't take the cable network because they don't want the wives to be exposed to too much of entertainment and know what's happening around the world, in the world of fashion, in the world of films. So these things are happening. Yes. These things are happening. And it's a very complex debate. इसको एड्रेस करने के लिए, बट आई थिंक बांग्लादेश के तरफ हमें देखना चाहिए कॉन्स्टेंटली, एंड कोई इजी आंसर्स बांग्लादेश से नहीं है, क्योंकि लाइक आई सेड जब तक हसीना है थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, बट पोस्ट हसीना बांग्लादेश might have a problem, as far Bangladesh will have a problem with itself, and India might have a problem with Bangladesh going forward. This thing, do you think this change, this gradual or fast shift is being represented in films also in India from Tollywood, from the Bengali film industry? Is this change of mindset, this radicalization being shown enough in the films that are coming out? Because films is a very fast way to reach the audience. It has an impact. Yes, of course. I think Tollywood, I was very amazed. I have written about the film. I was extremely amazed and pleasantly so to watch a film called Rakto Bij, which आपने देखा फिल्म? आपको देखना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, which is a film out of Kolkata, from the Tollywood film industry, which actually deals with the problem of radicalization among a section of the Muslim population. It's a very, very well made film. It had Victor Banerjee and it was taken from real life events. The blast that happened just outside. And also how people were hiding their identity. How people were hiding their identities, and they had infiltrated even into the household of the president's sister. Okay, so yes, it's a I think some amount of
reality is sipping in, hard reality is sipping into But monkey Tollywood film. balancing is also happening. Did you notice that place where where the sister is saying that, so what if if he kind of bombed people or gunned down people? Shouldn't he be granted mercy? When the judge when the president actually negates the mercy petition. So even when these films are happening, why this monkey balancing? I think Bengal's, again, something Nishant and I keep talking about, Bengal's psyche is very hard to get. I can argue that it is a psyche that even the most fertile political minds in the country right now do not often get right. But I think it's a very hard psyche to get, because there were several influences that has shaped the psyche of the Bengali mind. There was, of course, the early English education influence. There was the Christian missionary influence. Then there was, for 34 long years, the communist influence, Yes. right? Which is 34 years is a very long time. And all of us coming out of Bengal, including some people who it can be argued has now turned towards the right, will always have somewhere in their head a sense of the left. Okay, or at least, if not Maybe a soft corner. a soft corner, a sense of society, if not political ideology, you will have. So you will find people who have come to the right also. I'm not taking names. People who have come to the right also today, they are socially liberal. They tend to be socially liberal. Yeah. They may be politically in favor of the BJP or big fans of Prime Minister Modi, but they're socially liberal. They're more easy with their faith. They may be very proud Hindus, but they are more easy with their faith. Which brings me to the point that Hinduism, the way it is practiced in Bengal, is more, I don't want to use the word liberal, but it's very different from the way it's practiced outside Yes, Bengal. it is. Firstly, various strands of Hinduism exist at the same time within a single state. I don't think it is true for all states. You know, every state or every region will have a way of practicing Hinduism. But within the same state, there are so many traditions of Hinduism that are being practiced, is something very unique to Bengal. So there is Monosha Pujo, there is also Durga Pujo, you know. There is not a pronounced sense of Lord Ram, which now it has come in through a political slogan. You can argue that there were Ram Mandirs. There were many people do not know that just outside Kolkata there is a 300-year-old Ram temple now. 300 years ago, who brought the Ram temple there, right? So there was a sense of Ram, but it did not remain so pronounced till the BJP's political discourse came towards Bengal. But there is a Shakto tradition, which is a fiercely meat-eating tradition, which we get into the non-vegetarian debates among Hindus on Twitter and elsewhere. So I think the Bengali psyche is very difficult to read even for a Bengali. How it will be shaped going forward is very, very hard to tell. I think Nishant will agree with me, but I think there is a lot of change now. Even within that complex psyche, there's a lot of change now, and people are actually engaging with the idea of the political right. दीप, एक चीज मैं पूछना चाहूँगा, जब हम लोग बंगाल चुनाव कर रहे थे उस समय आपकी एक पुस्तक आई थी, आपने एक डायरी लिखी थी और जो बाद में बुक बनी। उस बुक में आपने काफ़ी कुछ लिखा और पोस्ट पोल में जो हुआ हम सब ने देखा, और चुनाव का परिणाम भी जो हमने सोचा था वो वैसा नहीं था। तब एक जय श्री राम जो भाजपा नारा देती थी चुनाव के दौरान, जिसके वजह से ममता अटैक भी करती थी कि यहाँ माँ दुर्गा चलेगी, माँ काली चलेगी, यहाँ जय श्री राम नहीं चलेगा। और जो बहिरोगत वाला जो वो पूरे चुनाव के दौरान जो चुनाव उसी आसपास घूमा। अब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, मंदिर भी बन गया है, उस समय मंदिर नहीं बना था। क्या कुछ बदला है इन 2-3 सालों में? मतलब चुनाव के बाद से लेके अभी तक जाके हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव में अभी जो लेटेस्ट सर्वे है उसमें दिखाया जा रहा है कि भाजपा तकरीबन 25 सीट के आसपास जीत रही है। पिछले बार भी भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा था। तो ये जो जय श्री राम की जो बात आप कर रहे थे कि वहां का जो हिंदुत्व है, जो बंगाल का हिंदुत्व है, जो बंगाल का सनातन है, वो थोड़ा अलग है बाकी देशों से। तो ये जो 3 साल में जो कुछ चेंजेस हम अगर देख पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हमने देखा कि बहुत सारी रैलियां निकली जो वीएचपी के द्वारा निकाली गई या लोगों के द्वारा निकाली गई,
बहुत सारी बदलाव देखने को। अभी मैं बंगाल गया था तो वहाँ भाजपा के झंडे, मैं बताऊं कि भाजपा के झंडे वहाँ पे नहीं थे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो झंडे लगे थे वो अभी तक कोलकाता में है। कोलकाता शहर में आपको एक भी भाजपा का झंडा नहीं मिलेगा। जादवपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में होके आया हूँ, वहाँ पे एक भी भाजपा का झंडा नहीं है, लेकिन वहाँ पे जय श्री राम के भगवा ध्वज कई जगह आपको दिख जाएंगे। ये जो बदलाव है वो उसको कैसे देखते हैं? बहुत ज़्यादा बदलाव है, बहुत ज़्यादा बदलाव है सिटीज़ में भी। फर्स्टली हम सब ने देखा है कि इस बार जो दुर्गा पूजा हुआ, जहाँ पे राम मंदिर हुआ, लाखों की तादाद में लोग आए। जो दुर्गा पूजा पंडाल जो बीजेपी लीडर ने राम मंदिर थीम में बना, वही लोग कहाँ से आए? ये तो बाहर बिहार से, उत्तर प्रदेश से नहीं है ना, तो बंगाल के अंदर से आए। और उधर मैंने उनको मैनेज करना, उस क्राउड को कितना मुश्किल हो गया था कि लाखों के तादाद पे लोग आ रहे थे। ये लोग कहाँ से आए? ये लोग बंगाल से आए, तो ऑब्वियसली इनके मन में चेंज आया। तो एक राम का सेंस तो अभी आ गया है। 2001 से 2004 में डेफिनेटली देयर इज़ अ सेंस ऑफ लॉर्ड राम, और देयर इज़ अ डिफरेंट होते हुए भी एक सर्टन काइंड ऑफ ब्रदरहुड विथ अ फेलो हिंदू फ्रॉम आउटसाइड बंगाल। आई थिंक देयर इज़ अ चेंज। कैलकाटा के एलिट सर्कल में वो चेंज आया कि नहीं, उतना बड़ा चेंज आया कि नहीं, आई डोंट नो, तो देखना पड़ेगा। लेकिन बंगाल में ज़रूर आया है। इसमें मैं थोड़ा सा खुद को क्वालिफाई करना चाहता हूँ। एक ना, कैलकाटा और बंगाल को हम लोग इक्वेट करते हैं। हाँ। मुझे लगता है रिलीजियोसिटी निशान, क्योंकि मैं तो कैलकाटा से ही हूँ, तो माई मदर कम्स फ्रॉम शिलीगुड़ी। बट आप अगर कैलकाटा से शिलीगुड़ी तक जाओगे, आपको शायद वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजियोसिटी दिखेगा पहले भी। लेकिन हम लोग क्योंकि कैलकाटा में सारे टॉकिंग हेड्स है, कैलकाटा में इंटेलेक्चुअल्स है, फिल्म स्टार्स है, तो दिल्ली से भी लोग कैलकाटा ही जाते हैं, एक दो टूर करते हैं इधर उधर, लेकिन कैलकाटा फिर आके कैलकाटा में ही कॉन्ग्रीगेट करते हैं। तो मुझे लगता है वो रिलीजियोसिटी हमेशा से था, क्योंकि टॉकिंग पॉइंट क्या होगा वो कैलकाटा डिसाइड करता था, वो चीज़ हमें उतना दिखा नहीं। लेकिन अब तो कैलकाटा में भी आपको दिखता है। ये जो सेंस जो हम बोल रहे हैं ना, सेंस बदला है, ये कैलकाटा में भी बदला है। मेरे दोस्त हैं जो कैलकाटा में बहुत बड़े बड़े पोजीशंस पे है, प्रोड्यूसर्स है और फिल्म डायरेक्टर्स है, एक्टर्स है। वो तो अपने फेसबुक में स्टेटस में जय श्री राम लिखे नहीं कि जय जगन्नाथ तो लिखते ही है, या एटलीस्ट ओपनली अपने रिलीजियोसिटी का बात करते हैं। पहले ये उतना नहीं, पहले एटलीस्ट कैलकाटा में नहीं था, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं लेफ्ट का एक सेंस था। ऐसा नहीं कि लोग पूजा नहीं करते थे घरों में, लेकिन उस चीज़ को शायद उतना ओपनली बोलते नहीं थे। वो सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा छोड़ के जो फेस्टिवल बन गए थे। लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा रिलीजियोसिटी के सेंस पे भी लोग बात करते हैं। आप एक बात बोले कि लेफ्ट का जो इम्पैक्ट रहा, जो 30 सालों तक आपने एक टर्म यूज़ किया कि लेफ्ट का इम्पैक्ट रहा, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हिंदुत्व बंगाल में हमेशा रहा? हाँ। लेकिन वो जो लेफ्ट का जो इतना लंबा टेन्योर रहा, वो कहीं ना कहीं जो बंगाली मानुस है, जो बंगाल के लोग हैं, उनके हिंदुत्व को लेफ्ट ने दबाने का काम किया। हम ऐसा कह सकते हैं क्या? बंकिम चंद्र कौन थे? बंकिम चंद्र का राइटिंग क्या था? आप अगर मेरा एक दोस्त शुभ्रजीत मित्रा एक फिल्म बना रहा है, देवी चौधुरानी। हाँ, हम उसके बारे में बात भी कर चुके हैं, देवी चौधुरानी के बारे में। तो हिंदुत्व या हिंदू रिलीजियोसिटी तो बंगाल में हमेशा से था। बंकिम चंद्र टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी। Even Sanjeev Sanyal has written in his book Revolutionary. हाँ, रेवोल्यूशनरीज। तो राइटिस्ट पॉलिटिकल और रिलीजियस राइट का जो फिलोसफी था वो तो बंगाल में काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन कहीं ना कहीं 34 साल में लेफ्ट के कारण क्या हुआ, लेफ्ट बहुत कॉन्शियसली पूजा बंद किया ऐसा तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं रिलीजियोसिटी को ऊपर, सोसाइटल लेवल पे रिलीजियोसिटी को ऊपर नहीं आने दिया। ठीक है, तो उसमें वो तो ज़रूर है, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं 34 साल ऑफ लेफ्ट, जो केरला में भी आप देखते हो, केरला में तो बहुत सबरीमाला कहाँ है, बट कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि ये नैरेटिव आता है कि जो हिंदू जो है बहुत लिबरल है, वो भी हर तरह का खाना खाता है और ही इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम एनीबडी एल्स। तो कहीं ना कहीं आपके जो सेंस ऑफ रिलीजन है वो डाइल्यूट एटलीस्ट पब्लिकली तो होता है। ये बात तो सही है कि और अभी भी होता है क्योंकि लेफ्ट पॉलिटिकली शायद पावर में ना हो, लेकिन लेफ्टिस्ट थॉट तो कहीं ना कहीं है। अभी भी लोग इस चीज़ चाहते हैं कि ओपनली हिंदू रिलीजियोसिटी के बारे में बात करेगा कि, और ये कहीं ना, ये हिपोक्रेसी, पता नहीं हिपोक्रेसी बोलूँगा, डबल स्टैंडर्ड बोलूँगा, ये कहीं ना कहीं है, क्योंकि आप यही सेम पैरामीटर से आप मुस्लिम रिलीजियोसिटी के बारे में बात नहीं करते हो, लेकिन हिंदू रिलीजियोसिटी के बात जैसे ही आप बात करोगे, लोग बोलेगा आप कम्युनल हो, बिगट हो।
और या कंजर्वेटिव हो, बीजेपी सपोर्टर हो, भक्त हो, ये सब चीज़ आपको बोला जाएगा। एंड ऑल्सो हिपोक्रेसी तो है ही, क्योंकि बंगालीज अपने कल्चर के बारे में इतना ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं कि हम बंगालीज हैं, कल्चर, गाना है, टैगोर है, ये हमारा खाना है, माँ काली है, दिस दैट। एट द सेम टाइम when it comes to feeling proud about your culture related to the Hinduism or the religious part of it, they start feeling a little iffy about talking about it or flaunting it or showing it, wearing it on their sleeves. And but Durga Puja टाइम में हाँ बिरयानी खाएंगे, रोल खाएंगे, इट्स ऑल अबाउट फूड एंड pandal hopping, but not everybody, even I've seen the youth, it's become like a carnival. The religious aspect of it has somewhat diminished, and also in the name, it's Durgotsav, it's like an utsav, it's not like a puja. So I think that thing has to be brought back, or I don't know how it will be brought back, that people need to understand that your culture, being a Bengali, it's your culture, but you being a Hindu is also a major part of your being a Bengali. ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो आपके पॉडकास्ट में ये स्टोरी बोलना चाहिए कि नहीं। No, प्लीज बोलिए। बट मैं कहीं पे पढ़ रहा था, मेरा एक दोस्त है सरोजेश मुखर्जी, उसका किताब आया अभी, डेविड हेयर का बायोग्राफी लिखा उन्होंने, तो उन्होंने एक पोस्ट डाला था, ही समबडी हु आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर, और वो काफ़ी हिस्ट्री के बारे में इंटरेस्टेड है। तो आपको पता है कालीघाट का हिस्ट्री क्या है? कालीघाट टेम्पल, there was this Bengali gentleman, okay, Mr. Datta, I think Kali Prasad Datta, if I'm not getting the name wrong, जो एक फ्यूडल लॉर्ड थे, ज़मींदार थे, ठीक है। तो ही फॉल्स इन लव विद अ मुस्लिम वुमन, ठीक है, और उन्होंने बोला कि और दिस थिंग, दिस अफेयर रियली एंगर्स द ब्राह्मण्स, दैट आप ये नहीं कर सकते, आप उनके साथ नहीं रह सकते, एंड यू आर स्टेइंग विथ हर. So but he didn't care because he's a feudal lord. So then he had to get a puja done. So no Brahmin will come to his house because he's doing something blasphemous like staying with a Muslim woman. So he gets some other kind of Muslims to do another kind of Muslim, younger Muslims, to come and do the puja. They do the puja, and he's very happy that he could throw out the Muslims who opposed him and his religious beliefs. And he found no problem in being in love with a Muslim woman and wanting to do puja. Okay, so he was very happy. The puja finally gets done. So he tells these Muslims, he tells these Hindu priests that what do you want? क्या दूँ आपको? तो बोला आप हमें लैंड दे दीजिए फॉर अ मंदिर. उस लैंड पे कालीघाट बना. So this is the story of कालीघाट. Okay, so ये तो लेफ्ट आने से बहुत पहले हुआ. तो हिंदू जो साइकी है ना, वो बहुत सारे इन्फ्लुएंस है, यूरोपियन इन्फ्लुएंस. देखिए आपके पास अगर बहुत पहले से एक विंडो आ जाता है, आज जो आप मोबाइल स्मार्टफोन के ज़रिए कर सकते हैं, आप कहीं का भी वीडियो देख सकते हैं. आप इधर के बैठ के नॉर्वेजियन वीडियो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जर्मनी में फार राइट आ रहा है या कहीं पे लेफ्टिस्ट वापस आ रहा है. आप इधर बैठ के नोएडा में बैठ के पूरा दुनिया आपकी मुट्ठी में है. पहले तो ऐसा नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था. तो एक चीज़ क्या था? एक चीज़ था आपके बुक्स. ना बुक्स आप पाठशाला में जाते हैं जहाँ पे संस्कृत पढ़ाया जाता है, या आप कहीं पे मुस्लिम एजुकेशन, ये तो दो चीज़ था, और क्रिश्चियन, ये तीन वे यू कैन गेट एजुकेटेड. तो आप अगर पाठशाला में जाते हैं तो आपको पंडित जी जो पढ़ा रहा है वही पढ़ना पड़ेगा, जब आपका जो मौलवी पढ़ा रहा है वही पढ़ना पड़ेगा. तो आपका जो विजन है वो जनरली बहुत नैरो होते थे. और कुछ लोगों को शायद था, जो हिंदू समाज से कुछ लोग थे या मुस्लिम समाज में जो उनके एरिस्टोक्रेट थे, वो शायद इंग्लिश एजुकेशन अपने बच्चे को दे पाए. उसका नंबर बहुत लिमिटेड था. लेकिन बंगाल में क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटिश पहले आए और उनको अपने ऑफिसेस के लिए क्लर्क्स चाहिए था, उन्होंने इंग्लिश सिखाया. तो इंग्लिश तो सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है ना. जैसे आप इंग्लिश सीख गए लैंग्वेज, आपको किताब पढ़ना आएगा. तो आप किताब कहाँ का पढ़ोगे? वो किताब कौन लिख रहा है? वो किताब इंग्लैंड में बैठ के लोग लिख रहा है, बाहर बैठ के लोग लिख रहे हैं. तो उनके जो सारे थॉट्स हैं एट दैट टाइम वो आपके दिमाग में आ रहा है ना. तो आपका जो आसपास का थॉट है उसको चैलेंज करोगे, ये एटलीस्ट आप ये सोचोगे कि यही सब कुछ नहीं है. जो बच्चा मद्रासा में जा रहा है या पाठशाला में जा रहा है, वो तो एक ही तरीके से दुनिया को देख रहे हैं. इधर आप काफ़ी तरीके से दुनिया को देख रहे हो. तो ये चीज़ बंगाल के हिस्ट्री में है.
इस चीज़ को, ये चीज़ सिर्फ ये बोलना कि कम्युनिज्म के लिए रिलीजियोसिटी कम है हो गया, ऐसा नहीं। ये तो जैसे बंकिम चंद्र थे ना, तो वैसे उतने हिस्ट्री से आप और एग्जांपल्स निकाल सकते हो जो उस हार्ड रिलीजियोसिटी को भी चैलेंज किया है। तो ये एक सोसाइटी साइकिल्स में मूव करता है। ये अभी टाइम है वेयर द कंट्री एंड ऑल्सो बंगाल, इट्स पार्ट ऑफ द कंट्री, सम बंगालीज मे नॉट वांट टू बिलीव इट, बट इट इज गोइंग थ्रू अ फेज वेयर रिटर्निंग टू योर हिंदू रूट्स इज द ऑर्डर ऑफ द डे। उससे बंगाल भी बाहर नहीं है। तो इवन इफ बीजेपी इज एट 77 सीट्स, अब तो लेस है बिकॉज कुछ लोग छोड़ के चले गए ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस में, बट इवन इफ से बीजेपी डज एज निशांत सेड 22 to 25 सीट्स, ये दोनों थॉट एग्जिस्ट करेगा। आप वो थॉट भी बंगाल के ब्लड स्ट्रीम से नहीं निकाल सकते। लोग वैसे बात करेंगे, लोग बोलेंगे ऐसे चीज़ें जो अगर आप बहुत ज़्यादा हिंदू हो, मतलब इन सेंस आपके लिए अगर रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको लगेगा ये क्या है। निशांत को मैं डिसेंसिटाइज कर रहा हूँ, मैं निशांत को फोर्स करता हूँ हर तरीके के थॉट से, थॉट को एक्सेप्ट करे ना करे, एटलीस्ट उसके साथ एंगेज करने के लिए। मुझे लगता है कि एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा कुछ बोल दो कि आपके सामने वाला बंदा सुन ही नहीं पाए, तो वो अलग बात है, लेकिन आपको शायद वैसे बात नहीं करना चाहिए। आपका जो भी थॉट हो, आप उसको एक सर्टन सिविलिटी के साथ अगर बोलोगे, तो मुझे लगता है एंगेज तो करना ही चाहिए। तो बंगाल में ये चीज़ नया नहीं है। बंगाल में जैसे बंकिम चंद्र है, वैसे ऐसे भी एग्जाम्पल्स काफ़ी, एंटायर बाबू कल्चर, इफ यू लुक एट इट, who were babus, they were people who could read and write English. I think that sense of elitism has also come from there. A sense of loosening of, a sense of, how do I put it, a sense of social, at least liberal in the social sphere was always there in certain parts of Bengal, along with conservatism, religious conservatism. वो भी था क्योंकि some of the very hard and प्रॉब्लमेटिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उतना प्रॉब्लमेटिक बाहर नहीं था। वो भी बंगाल में ही था ना, सत्याग्रह तो बंगाल में था, कास्टिज्म भी बंगाल में था, और लेकिन साथ साथ देखिए रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स भी बंगाल से आया। विद्यासागर जो विडो रीमैरिज के बात किया, राजा राम मोहन रॉय जो सतीदाह प्रथा के खिलाफ बात की, ये लोग भी बंगाल से था। तो दोनों स्ट्रीम कांस्टेंट एंगेजमेंट से। अपने जो हमारे समाज में जो इविल्स है कह सकते हैं, जो कास्ट मैरिज की जो चीज हुई, सती सिस्टम की आपने बात, हम आपकी किताब पे आएंगे। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि शर्मी भी हमारे समाज की बात कर रही थी, हिंदू सोसाइटी और मुस्लिम सोसाइटी। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो हमारे समाज मतलब जो सनातन में जो इविल्स रहे, चाहे वो सती प्रथा रही या विधवा की शादी की बात हुई, तो बदलते समय के दौरान हिंदू समाज से ही ऐसे लोग आए जिन्होंने उस पर काम किया और आज वो ऑलमोस्ट एबॉलिश हो चुका है। लेकिन जो वहीं पे जो इस्लामिक सोसाइटी है, वहां पे चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो जिसको अभी हाल फिलहाल में हटाया गया, चाहे सरिया लॉ की बात की जाए या फिर वहां पे पॉलीगैमी की बात की, तो क्या हम ऐसा कह सकते कि जो समाज है, जो इस्लामिक सोसाइटी है, वही हम किसी और को दोष देने से बेहतर है कि हम क्या ये कह सकते हैं कि इस्लामिक सोसाइटी ही खुद को अमेंड नहीं करना चाहता, या उसमें से जो लोग पढ़ के लिख के, क्योंकि किसी भी वर्ग का जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है वो उस समाज की बुराइयों को ठीक करता है। तो जिस तरीके से इस्लाम के लोग जो बाहर आके स्कॉलर बने, मिनिस्टर बने, बॉलीवुड में जैसे नसरुद्दीन शाह जैसे लोग हैं, जावेद अख्तर जैसे लोग हैं, जो लोग उतने ऊपर तक गए बाहर की दुनिया को देख करके, उसके बाद भी वो लोग उन एविल्स के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो ये जो अंतर है दोनों समाज में, इसको कैसे देखें? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत लेयर्ड भी है। पहले तो आप माने ये तो होमोजीनियस एंटिटी नहीं है। बांग्लादेश का मुसलमान बिहार के मुसलमान नहीं है, बिहार के मुसलमान कश्मीर के मुसलमान नहीं है, या सोचिए पूरा साउथ एशिया के, माने इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमान को तो सऊदी अरब में शायद मुसलमान ही ना समझे, तो बोलते हैं कि आप लोग कन्वर्ट हो। तो आप देखिए ना, मोहम्मद बिन सलमान आज कैसे बात कर रहे हैं, है ना। ईरान एक कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ मुस्लिम्स, उधर का सोशल रियलिटी बहुत अलग है। आप देख रहे हो जो एंटी हिजाब प्रोटेस्ट उधर से ही आ रहा है, उठ के आ रहा है। लेकिन एक चीज मुझे कॉमनैलिटी मेरा बहुत, मुझे इस विषय पे इतना तो बात ही नहीं करना चाहिए, लेकिन बंगाल और क्योंकि दिल्ली में रहता हूँ काफी टाइम, और बांग्लादेश में मुझे एक सेंस जो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, सिर्फ इतना नैरो स्फीयर में मुझे लगता है कि उनका जो एलीट लोग है ना,
उनके एलिट लोग को थोड़ा शायद ज़मीन पे आना चाहिए, आके उनका रियलिटी देखना चाहिए, ये मुझे लगता है, क्योंकि वो उनके जो लाइफस्टाइल है और उनके जो थॉट्स है, और उनको लगता है कि क्यों इस्लामोफोबिया फैल रहा है, इस्लामोफोबिया खराब चीज़ है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको भी थोड़ा सा आई थिंक ज़मीन पे देखना चाहिए क्या हो रहा है। आई थिंक वो ढाका में हम देखे हैं कि एक बहुत स्टार्क रियलिटी है कि लोग एक सर्टन एरिया में बैठ के कैसे सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ढाका को ही देखिए और बाकी बांग्लादेश को देखिए, वो अंतर वो क्लास बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी ये ना एक ये भी है कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। तो और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विथ टाइम, ऐसा नहीं कि हिंदू सोसाइटी से पूरा ही बाहर आ चुका है, देयर आर पार्ट्स ऑफ इंडिया विच आर स्टिल प्रॉब्लमेटिक, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्यूडलिज्म नहीं गया। तो वो जो फ्यूडल नेचर है ना, कि तो नीचे के आप देखिए, आप कसाब को देखिए, 2611 कसाब, वो क्या था, माने ही वॉज अ टूल, वो यूज हो गया, है ना। तो आप अगर कुछ चीज़ें, जो असाद नूर के बारे में मैं आपको बताया था, जो एथिस्ट है, एथिस्ट ब्लॉगर है बांग्लादेश के, वो असाद मुझे बताता है कि देखिए बांग्लादेश के कुछ मदरसा में आपको इतना आप जैसे ही जाते हो आपको हेटिंग द अदर आपको सिखाया जाता है ना। तो वो सब लोग, जब आप सोचिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे तो बाहर आके आपको अटैक नहीं करेगा, लेकिन उसमें अगर 5 बच्चे के भी दिमाग में वो चीज़ रह गया, तो आपको तो 5 पोटेंशियल टेररिस्ट आप पैदा कर रहे हैं ना। ये चीज़ तो आपको देखना पड़ेगा। ये चीज़ सिर्फ ये बोल के देखिए, ये तो बहुत बड़ी सवाल है। ये चीज़ ये बोल के देखिए कि हम ऐसे नहीं हैं, या सलमान रश्दी का एग्जाम्पल देखिए, कब लिखे थे वो सेटनिक वर्सेस, और कितने साल बाद उस पर अटैक हुआ। एक बंदा जो पैदा ही नहीं हुआ था, जो उसका आंख ले लिया, जिन्होंने उसको न्यूयॉर्क में अटैक करके, वो पैदा ही नहीं हुआ जब हाँ, ये तो इससे आप कैसे हर सोसाइटी में निशान कंजर्वेटिज्म है। Yeah, and this class disparity is a reality there, because I have heard well-to-do Muslims complaining that यार उनको जो मतलब निम्न स्तर के हैं, उनको ना ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमें और उनमें तो फर्क ही नहीं रहेगा। उनमें ये माइंडसेट में है ये बात, उनको चाहिए कि they want them to be downtrodden and impoverished। जैसे प्रोटेस्ट के टाइम पे यू फील इट्स सिंगुलर आइडेंटिटी, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अब जो एलीट्स है, जो एरिस्टोक्रेट, वो कैसे देखते हैं लार्जर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, इसमें तो बहुत डिस्पैरिटी है ना, बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। दीप, आपकी किताब के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपकी तीनों किताब, हम इलेक्शन को निकाल देते हैं तो दोनों ही जो किताब रही, या ब्लड आइलैंड या बीइंग हिंदू इन बांग्लादेश, वो बंगाल और बांग्लादेश के आसपास घूमती है, और दोनों में एक चीज कॉमन है, उसमें परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज, वो चाहे जो मारीचापी में जो हुआ वो, या फिर जो बांग्लादेश में हो रहा है वो। आपने मारीचापी के बारे में कहूँ तो इससे पहले, अगर आपके किताब से पहले एक आध पुस्तक और थी, लेकिन उसने एक मेनस्ट्रीम नहीं किया चीजों को, उसकी बात नहीं होती थी, लोग जानते नहीं थे कि ऐसा भी कहीं कुछ हुआ था। जबकि ये बहुत मतलब पुरानी बात भी नहीं कहेंगे, गोधरा में जो हुआ उसके बारे में हर कोई जानता है, वो इवन आप देखते हैं कि एग्जाम पेपर में उससे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन इनफैक्ट मैंने कई सारे ऐसे, मान लीजिए कि स्पेस में या बहुत लोगों से जो मैं मिलता हूँ, उठता बैठता हूँ, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ 90% लोग इस पुस्तक के आने से पहले मारीचापी में क्या हुआ नहीं जानते थे। इस पुस्तक को करने के पीछे की वजह कि ऐसा क्या हुआ जो आपने सोचा कि इस पुस्तक को लिखना चाहिए? ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपके ऊपर भी एक टारगेटेड अटैक, मैंने जो कि पर्सनली आप पे देखा कि बहुत एक टारगेटेड अटैक हुआ। आपके कुछ दोस्त, चाहे मीडिया इंडस्ट्री से हो और जो नहीं हो, वो उन्होंने आपसे दरकिनार कर लिया, एक तरीके से संबंध को खत्म कर लिया। इस पुस्तक के पीछे की सोच के बारे में बताइए कि दोनों ही बार बंगाल और बांग्लादेश, और दोनों में परसिक्यूशन। ये तो मेरा आई थिंक कहीं ना कहीं, आई थिंक इट्स लिमिटेशन ऑफ माय इंटेलेक्ट। मैं क्योंकि मैं जहां से आया हूं उसके बाहर में मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, तो मुझे इतना इंटेलेक्ट तो है नहीं कि मैं किसी ऐसे विषय पे लिखूं किताब या बात करूं जो मेरे रियलिटी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आपका लंबा कैरियर रहा, पॉलिटिक्स भी चुन सकते थे उस किताब के लिए। आप बहुत कम समय में आप संपादक बन गए थे, बहुत सारा आपका अनुभव रहा। नहीं, मुझे लगता है मुझे लगता है कि ये स्टोरी तो इट्स
इन अ सेंस इट वाज, अब मेरे दोस्तों के बाद, पुराने दोस्तों के बारे में बात किया, उनके लिए तो ये बिट्रेयल था मेरा किताब लिखना, क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी में था मैं लेफ्ट पॉलिटिक्स करता था स्टूडेंट यूनियन लेवल पे। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी में लेफ्ट पॉलिटिक्स करता था, तो अच्छा, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। तो नहीं, तो Because he says there was no other हाँ, option हाँ। also. No, not really. I think people change. I think change is a constant. अभी किताब पे बात करता हूँ, तो मुझे लगता है, लेकिन ये स्टोरी मेरे साथ बहुत सालों से था, क्योंकि मोरिस झापी मैसाकर का एक सर्वाइवर वो मेरे घर में आए थे। उनके पिता मोरिस झापी में जो सेटलमेंट बना था, जो रिफ्यूजीज थे उनके लीडर थे, 3 लीडर थे उनके, उनमें एक था रोंगोलाल गोलदार करके एक इंसान, वो हंचबैक थे। तो जब मोरिस झापी में पुलिस एट्रोसिटी शुरू हो गया, क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट जब चाहते थे कि ये लोग छोड़ के चले जाए, तो वो रेप्स हो रहा था और मर्डर्स हो रहा था। तो कहीं किसी भी तरीके से एस्केप करके रोंगोलाल गोलदार अपने 15 साल की बेटी को हमारे घर पे लेके आए, और मेरे पापा को वो जानते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना कुछ पब्लिक इंटेलेक्चुअल, प्रोफेसर, राइटर्स, वो लोग बहुत इन्वॉल्व हो गए थे मोरिस झापी में, उनमें मेरे पापा भी थे। तो मैंने, इनफैक्ट मेरे पापा उस ज़माने में, सोचिए 78 में 15,000 रुपया उनको दिए थे कि आप इधर बसे हैं तो आपके लिए, आपको चाहिए होगा, क्योंकि आप इधर एक टाउनशिप बना रहे। 15,000 रुपया 1978 में, अच्छा, तो उनके पूरा लाइफ टाइम का सेविंग जो था, वो प्रोफेसर थे तो उनको दे दिए थे। तो रोंगोलाल गोलदार हमारे घर पे आए और नॉक किए, और मेरे पापा को और मम्मी को बोले, आप मेरे बेटी को रखेंगे, क्योंकि पुलिस मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं तो मैंने खुद को बचा के इधर उधर जा रहा हूँ, लेकिन अगर बेटी मिल गया तो शायद पता नहीं उनके साथ क्या करेंगे। सो वो हमारे साथ रह गए। मैं 5 साल का था, तो मेरे को बोला गया था ये तुम्हारा कजिन सिस्टर है। तो वो मुझे स्टोरीज सुनाते थे रात को, और वो स्टोरीज ऐसा होता था कि पुलिस आए और हट्स पे आग लगा दिया, महिलाओं को लेके चले गए। तो मुझे ना मेरे रियलिटी से वो चीज़ इतना अलग था कि हट में लोग रहते हैं और एक आइलैंड है और फिशिंग करते हैं, वही फिश खाते हैं, और दूसरे आइलैंड से पिक्चर में पानी लेके आते हैं, और पुलिस घेर लिया। तो मैं सोचता था कि ये मेरे कॉमिक बुक और मेरे जो भी पढ़ता था उससे ये स्टोरीज काफ़ी अलग था। तो 1.5-2 साल थे हमारे साथ, लेकिन फिर वो चले गए, क्योंकि ये मैटर फिर तो मोरिस झापी क्लियर किया गया, और वो दूसरे एक जगह पे, बंगाल के अंदर ही एक विलेज पे चले गए। सो ये ना, इवन थ्रू माय स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं लेफ्ट पॉलिटिक्स किया, मैंने कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को लिंक नहीं किया। ये नहीं सोचा कि अच्छा 78 में था तो यही पार्टी, हाँ, मैंने शायद सोच के भी नहीं सोचना नहीं चाहा। ज्योति बसु की सरकार, तो मेरे टाइम पे मैं जब यूनिवर्सिटी में था, बुद्धदेव भट्टाचार्य का सरकार हो गया था, लेकिन मैं ये कॉन्शियस थॉट में नहीं लाया। लेकिन फिर मैं जब दिल्ली आया, और जब मुझे हार्पर कॉलिंस की तरफ से एक ऑफर आया, एक बुक एजेंट मिला मुझे, कनिष्का गुप्ता, और हमने डिसाइड किया कि हमें कुछ किताब लिखेंगे। तो मेरे दोस्त लोग भी बोले नॉन फिक्शन लिखना चाहिए, ठीक ठाक लिख लेता है। तो मैं सोचा किस चीज़ पे किताब लिखूं, और मुझे सीरियसली मुझे लगा कि मैं सोचा मैं किस चीज़ पे कुछ भी लिख सकता था, शायद अटेम्प्ट कर सकता था कुछ ना कुछ। इतने साल दिल्ली में हो गया था, मुझे लगा जो सबसे डिफिकल्ट स्टोरी है, जो मैं सब एकदम बचपन में सुना था, और जो मेरा अर्लीस्ट मेमोरी में रह गया, और लेकिन जिस रियलिटी को मैं खुद कन्फ्रंट नहीं करना चाहा कभी भी कलकत्ता में रहते हुए, उस चीज़ को कन्फ्रंट करूंगा। और मैं उस रूट पे वापस गया और माना को ढूंढ के निकाला, और माना जैसे और भी लोगों को, एटलीस्ट 15-20 लोगों को मैंने ढूंढ के निकाला। वैसे 7-8 लोगों का ही बात है, क्योंकि बुक का एक लिमिटेशन है, उतना ही चैप्टर्स है, लेकिन 15-16 लोगों को मैं ढूंढ के निकाला, और अलग अलग स्टेट में, छत्तीसगढ़ में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में वो बिखर गए थे। फिर मोरिस झापी मैसेकर के बाद उनको ढूंढ के निकाला, और खुद को कॉन्फ्रंट किया, खुद के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कन्फ्रंट किया, खुद के झूठ को कन्फ्रंट किया कि मैंने इस चीज़ को जानते हुए भी, ऐसा तो नहीं है कि मैं जब बड़ा हुआ और कॉलेज में गया, हाई स्कूल में गया, मुझे तो पता था कि माना के साथ और उस आइलैंड में जो हुआ था उसने वो क्या कौन था, क्योंकि मुझे तब तो पता ही चल गया था कि यही सरकार जिसका मैं स्टूडेंट, जिस पार्टी का मैं स्टूडेंट्स भी तो ये जो आप बोल रहे हो कि आपने अपने झूठ को कन्फ्रंट किया, कॉन्शियसनेस को आपने दबोचा, तो जो मोरिस झापी तो एक किस्म की मैसेकर थी, हिंदू मैसेकर। फिर being Hindu in Bangladesh में भी you have gone back to the Hindu refugees who had to flee Bangladesh, East Pakistan when they came to West Bengal. Now
the people, mostly the urban people of West Bengal, they all know this. Most of them, many of them have faced this, their ancestors have faced this. But what is keeping them from debauching their consciousness? वो क्यों ये सच को जानते हुए भी इसको कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं? जैसे आपने अपने दोस्तों की बात की, हाँ, उसी का extension जैसे जो शायद लोग आपके भी दो जानते हैं। हाँ, जैसे आपके दोस्तों में भी शायद उनके एंसेस्टर्स ने ये फेस किया होगा. I had कोट करूंगा आपको ही, आपने एक बार कहा कि आपके एक दोस्त ने बोला कि तुमको ऐसा ये सब नहीं लिखना चाहिए था. ये सच है, लेकिन इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू राइट. जैसे कोई बात नहीं करना चाहता है. जैसे मैंने जो ब्लड आइलैंड पढ़ा, मैंने किसी को दिया क्योंकि उनके वो कट्टर कम्युनिस्ट थे और she was a big fan of Jyoti Basu, and I said, your Jyoti Basu is a murderer. He murdered people. His government murdered people, and what he did was extremely wrong. How come you still support him? And she mumbled something and tried to politics is a different ball game. Politics में ये होता है, and tried to create this whole cloud. Then I said that but your ancestors had to leave everything and flee East Pakistan, and yet y'all don't want to confront this whole radicalization situation that Islam is not a secular religion. And I was hearing them say, no, but it's, we were treated very well when we went to Bangladesh. I felt like telling them, because you are tourists, you're giving them money and business. So what will it take for people in West Bengal to confront their consciousness? BJP winning West Bengal. but how No, I think. But BJP is but BJP is giving out flooring people like Pawan Singh, and then this whole uproar of सिंह पे आपका मेरा और निशांत का आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. बट आई थिंक नो, बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक मैं आपको अभी बता रहा था ना कि ये आइडेंटिटी काफ़ी स्प्लिट है. बंगाली जो साइकी है उसमें इतने सारे इन्फ्लुएंसेस घुसा कि आप शायद एक चीज़ को एक ही तरीके से नहीं देखना चाहते हो. काफ़ी सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू आप लेने चाहते हो, विच इज़ अ वेरी गुड इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज. लाइक आई सेड, निशान को आजकल मैं ऑलमोस्ट फोर्स करता हूँ कि ऐसे भी देख नज़रिया, अलग अलग नज़रिया के से एक ही चीज़ देख. Having said that, there is a huge, and there's no way of avoiding this question, there's a huge hypocrisy in not admitting कि आपके साथ ये चीज़ हुआ था. There's a huge hypocrisy in ignoring मरीज छापी. इसको मैं जितना भी चाहूँ कोशिश करके भी इंटेलेक्चुअलाइज नहीं कर सकता. बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी है इस चीज़ में कि जहाँ पे आपके साथ, आपके फैमिली के साथ या आपके आसपास आज जो हो रहा है उस चीज़ को आप नहीं देख पा रहे हो. तो संदेश खाली, क्योंकि हम बंगाल के बारे, संदेश खाली में अगर आपको दिख नहीं रहा है कि उधर क्या हुआ, आप अगर फिर भी आपका जो डिबेट है, पॉलिटिकल डिबेट है, उसको आप ऐसे फ्रेम करने चाह रहे हो कि फासिस्ट बीजेपी एंड नॉन फासिस्ट एवरीबडी एल्स, या ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस है जो फासिस्ट बीजेपी को दूर रख रहे, वो ममता बनर्जी के लिए ठीक है, ममता बनर्जी के पॉलिटिकल सपोर्टर्स के लिए ठीक है, उनके आईटी सेल के लिए ठीक है, लेकिन एज समबडी हु वुड वांट टू पुट देमसेल्व्स आउट एज इंटेलेक्चुअल्स जो एक सीरियस डिबेट करना चाह रहे हैं, सो आर्ग्यूमेंट को सिर्फ फासिस्ट नॉन फासिस्ट तरीके से फ्रेम ऐसे फ्रेम करना बहुत बड़ा हिपोक्रेसी है. आपको इनफैक्ट प्रिंट में जहाँ पे मैं लिखता हूँ, उधर एक ओपिनियन कॉलम आया जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का, आई थिंक इज अ दलित प्रोफेसर, ठीक है. उन्होंने लिखा कि ही इज नॉट अ बीजेपी सपोर्टर, उन्होंने लिखा कि संदेश खाली इज द असर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब विमेन, है ना. तो इस चीज़ को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो? आप अगर आपकी लिबरलिज्म अगर बोलते हैं कि नीचे के स्तर को के लेके बात हो सकता है, तो आप शेड्यूल का क्या उसमें नहीं पढ़ते हैं? आप तो आर्गुमेंट जब फ्रेम करते हो, आप ऐसे ही फ्रेम करते हो ना कि अब मुस्लिम समाज पीछे पड़ा है तो उनके लिए उनके साथ आपको खड़ा रहना चाहिए.
ज़रूर चाहिए, लेकिन आपको क्या शेड्यूल ट्राइब में पिछड़ापन नहीं दिखता है? उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, उसको आप नहीं मानोगे वो गलत है और उसके लिए आपको आवाज़ उठाना नहीं चाहिए, और आप आवाज़ नहीं उठाते। वो चीज़ नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया उठाते हैं, फिर बीजेपी उठाता है, फिर नेशनल मीडिया उठाते हैं, और इतनी बड़ी चीज़ पे कितने ओपिनियन कॉलम्स दिल्ली से लिखा गया, आप बताइए। ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। आप तो मिस्टर मोदी को पॉलिटिकली अपोज करके भी ये ओपिनियन कॉलम लिख सकते थे कि ये एक एग्जाम्पल है जो बहुत गलत है। आपको तो उसके लिए भक्त नहीं होना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं लिखे, वो तो बहुत दिक्कत है। No, and living room discussions do not feature this at all. हाँ, ये इसको मैं एकदम ही और किसी भी तरीके से नहीं देखूंगा। ये स्ट्रेट आउट हिपोक्रेसी है। कई लोगों ने जब संदेश खाली की बात हुई और चुनाव क्योंकि बहुत नजदीक है, तो कई लोगों ने ये भी कहा कि जो संदेश खाली है और जो नंदीग्राम में हुआ था, जो ममता के लिए नंदीग्राम था, वो भाजपा के लिए संदेश खाली है। आपने दोनों ही मोर और लेस बहुत नजदीक से कह सकते हैं देखे। कितना सच है इसमें? निशांत, इस टेबल पे 2 किताब है, मैं 3 किताब लिखा, वो सेकंड वाला किताब है नहीं। 21 के बाद बंगाल 2021, आप जानते हो ये चीज, बंगाल 2021 एंड इलेक्शन डायरी के बाद मैं कोई भी पॉलिटिकल प्रेडिक्शन करना बंद कर दिया। हम लोग ना सिनेमा की बात करते हैं थोड़ा, क्योंकि आप आजकल सिनेमा पे बहुत बंगाली सिनेमा पे बहुत लिख रहे हैं, बांग्लादेश के सिनेमा। ब्लड आइलैंड मूवी कब बन रही है? प्लीज आप ये क्वेश्चन निशांत आजाद की तरफ घूम के करिए, क्योंकि निशांत को मैंने बोला हूँ, ही इज लाइक माय यंगर ब्रदर, बट आल्सो अपार्ट फ्रॉम द ग्रेट रिलेशनशिप आई शेयर विद हिम, आई आल्सो हैव अ lot of trust and faith in his capability. So I think if anybody will take this project forward, Yes, so it is, we are expecting that you will launch your film career with Blood Island. Let's see what will happen. With an adaptation and a honest. Nishant is, by the way, doing the Hindi translation of Blood Island. That's Yes, amazing. yes. तो हम बात कर रहे थे कि आप आजकल सिनेमा पे बहुत लिख रहे हैं। आपका एक जो लास्ट आर्टिकल है जो बॉलीवुड और बंगाली सिनेमा को लेकर के, वो भी काफी चर्चा में रहा। तो ये जो एक राइज है, पहले सिनेमा ज्यादातर इंडिया पाकिस्तान या और भी मतलब बाय रिलेशन की बात करें तो ज्यादातर भारत में अगर कोई फिल्म बनी होगी तो इंडिया पाकिस्तान को लेकर के, प्रो और एंटी हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन आजकल बांग्लादेश के ऊपर, इंडिया बांग्लादेश को के भी लेकर कई सारे फिल्म, कई सारे वेब सीरीज बनने, और बांग्लादेशी एक्ट्रेस काफी जो है अब हिंदी सिनेमा में, क्या मैं बॉलीवुड नहीं बोलूंगा, हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं। ये जो एक बदलाव हुआ है, चाहे बंगाली सिनेमा में तो पहले भी बांग्लादेशी कुछ एक्टर एक्ट्रेस काम कर, लेकिन हिंदी सिनेमा में, मेन स्ट्रीम में ये जो एक चलन बढ़ा है, इसके पीछे क्या ये जो बदलाव अभी मतलब पिछले 5-6 सालों में जो हुआ, ये क्या चेंजेस है, इसको मैं समझना चाहूंगा। हाँ, बंगाल एंड बांग्लादेश बोथ। बांग्लादेशी एक्टर्स पहले तो काफी समय से टॉलीवुड में काम कर रहे थे, लेकिन हिंदी सिनेमा में नहीं कर रहे। बांग्लादेश में आपको बोलूं, बांग्लादेशी फिल्म इंडस्ट्री बंगाल के फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उनका जो शर्मी तो सिनेमा देखती है, मुझे पता नहीं वो चोरकी देखती है कि नहीं, चोरकी जो OTT प्लेटफॉर्म है, आप अगर नहीं देखे हैं प्लीज़ देखें, वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। उनका जो कंटेंट है, Amazon Netflix जैसे है ना, वैसे छोटे थे टीवी में बांग्लादेशी सीरियल्स वगैरह आते थे और हम देखते थे, they were really good and the quality was much better. चोरकी की बात है, चोरकी के जो 3-4 कंटेंट मैंने देखा निशांत, मैं चौंक रह गया कि बांग्लादेश में ऐसे कंटेंट वो लोग सोच सकते हैं, कर सकते हैं। चोरकी इज लिमिटेड टू बांग्लादेश ओनली। इज नो, यू कैन वॉच चोरकी इन इंडिया, इन बंगाल आल्सो नाउ। आप उनका जो पेमेंट मोड था ना, पहले शायद आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता था या बांग्लादेशी टाका में पेमेंट करता था, आप इंडियन रुपी में भी आप पे कर सकते हो। तो आई थिंक आप भी बैठ के देख सकते हो। अनबिलीवेबल कंटेंट है उनमें। एक माई सेल्फ एलन स्वपन, मुझे इतना अच्छा लगा, मैं जब इंडिया टुडे में था, माई सेल्फ एलन स्वपन एक बंदे का नाम है, तो माई सेल्फ एलन स्वपन, जैसे बोलते हैं ना मीम, आई एम एलन स्वपन ना बोल के हम लोग भी बोलते हैं ना माई सेल्फ ऐसे बोलते हैं, तो उनका नाम है माई सेल्फ एलन स्वपन। मैं बहुत कहानी थोड़ा सा बताता हूँ आपको। माई सेल्फ एलन स्वपन एक ये है, एलन स्वपन एक ड्रग लॉर्ड है, ठीक है। वो एक एकदम मिडिल क्लास बंदे का जुड़वा भाई भी है, तो उसको पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस क्या कर रही है, बांग्लादेश की पुलिस सारे ड्रग लॉर्ड्स को ढूंढ के मार रहा है, ठीक है। एलन स्वपन कैसे भी करके बच जाता है, तो उसके भाई को बुलाता है कि भाई तू आजा, मेरे को बचा और मेरे लिए पैसा ले आ, क्योंकि मैं छुपा हूँ। भाई जब आता है, क्योंकि वो एकदम आइडेंटिकल है, भाई को वो मार देता है, ठीक है। अब भाई को मार के वो भाई का पोशाक पहन के, क्योंकि अलग तरीके से बाल काट के भाई की तरह, वो भाई के घर में चले जाते हैं। यहाँ पे भाई की बीवी है, ठीक है।
और आई थिंक उनके बच्चे हैं। अब भाई का जो फैमिली लाइफ है उसका इंडिकेशन है जो जैसे होता है कि हस्बैंड वाइफ में ऐसे ही है, वो लोग उतना ज़्यादा पैशन नहीं है रिलेशनशिप में, शादी का कुछ साल हो गया, अब ये आके उधर रहने लगता है एज एलन एज दिस अदर गाय, क्या सॉरी, इस जो बंदे को मार देता है उसका नाम है एलन स्वपन, ठीक है, एज एलन स्वपन वो रहने लगता है। तो बीवी को तो थोड़ा बहुत शक होता है क्योंकि उसका लैंग्वेज अलग है, बॉडी लैंग्वेज अलग है, उनका जो डायलेक्ट है वो थोड़ा अलग है, बॉडी लैंग्वेज अलग है, तो उसको लगता है कि ऐसे क्यों बात कर रहा है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये एग्रेसिव बंदा है। बट मोर इंटरेस्टिंगली दो कोई ऐसे सीन नहीं है फिल्म में, एक्सप्लिसिट सीन नहीं है, आपको हिंट में से समझाया जाता है कि इसका ये काफी पैशनेट बंदा है, ठीक है, और उनका जो रिलेशनशिप था हाउसवाइफ का अपने हस्बैंड के साथ वो ऑलमोस्ट डेड था, फिजिकल रिलेशनशिप। तो उस दिन इसकी बीवी को पता चलता है कि ये एक इंसान नहीं है, लेकिन द वुमन चूजेस टू बी विद दिस मैन नोइंग कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है, क्योंकि उसको एक तो पैशन वापस आता है उनकी जिंदगी में, और सेकेंडली ये काफी पैसा लेके आया है, इसका लाइफस्टाइल चेंज होता है। तो वो एक सेंस है होता है जो दिखाता है, बहुत अच्छे से दिखाता है, और टिटिलेशन के थ्रू से नहीं दिखाता है, स्टोरी टेलिंग इतना अच्छा स्टोरी टेलिंग है, वो दिखाते हैं कि उनको लगता है कि क्या ये कौन है बंदा, फिर मेरा हस्बैंड कहाँ गया, वो क्यों नहीं वापस आया, ये क्यों आया है, अच्छा ये क्यों, अच्छा उसका तो जो भाई था जो जुड़वा था वो तो ड्रग लॉर्ड हो गया था, लेकिन फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो सोचिए ऐसा एक कंटेंट आप समझ रहे हैं, ये सोचिए अगर इधर होता तो लोग तो बात करते, ये बांग्लादेश में बना और क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन सबसे वॉच्ड ओटीटी सीरीज हो। हाँ, एक उन्होंने गुटी करके ओटीटी एक सीरीज था जहां पे दिखा रहा है जो अजमेरी हक बंधन जो खुफिया जो इनका जो फिल्म था ना, विशाल भारद्वाज का खुफिया, उसमें जो टब्बू के लवर, हाँ टब्बू के जो लवर जो प्ले की वही एक्ट्रेस, उसने क्या की, उन्होंने दिखाया कि शी इज अ ड्रग स्मगलर जो ड्रग पेडलिंग करती है, लेकिन उसका और एक ये है, और एक उनका सेंस है, जो शी इज अ सिंगल मदर, वो चाहती है कि उसको बेटी ठीक से पढ़े बड़े हो, और वो क्या करती है, वो ड्रग स्मगल करते हैं अपने एनस में लेके, वो जो पुड़िया है, तो उसमें बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, आप ये सब क्या मैंने दिखा रहे कि एक वुमन अपना बॉडी पार्ट यूज कर रही है टू स्मगल ड्रग, लेकिन ऐसा होता है, और वो ओटीटी चोरकी ने किया। तो आप अगर, जो आपका सवाल था, आप अगर कंटेंट पे इतना ध्यान दो और सोशल कंजर्वेटिज्म को, आप इनफैक्ट ये आर्टिकल आएगा शायद नेक्स्ट वीक, मैं लिखा हूँ इसके बारे में, सोशल कंजर्वेटिज्म कहीं ना कहीं आपके खुद के सोशल कंजर्वेटिज्म जो शायद पॉलिटिकल स्फीयर में या सोशल स्फीयर में लोग नहीं कर पा रहे, वो आप ओटीटी के थ्रू करोगे तो, और जो एक्टर एक्ट्रेस उधर काम कर रहे हैं उसको तो ऑब्वियसली सिर्फ बंगाल नहीं बॉलीवुड भी देख लेगा। सो आई थिंक वो सेंस है। दीप, हम लोग रीजनल सिनेमा की बात कर रहे थे, बंगाली सिनेमा मुख्य रूप से बात कर रहे थे, तो अभी अगर इंडिया में ही देखेंगे तो जो बाकी भी जो तमिल सिनेमा है, तेलुगु है, मलयालम है, ये या मराठी है, इन सब का भी एक तरीके से कहें से मेन स्ट्रीमिंग हो रहा है। कई सारे सिनेमा जो हैं जो हिंदी में भी डब होके बन रहे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा व्यूअरशिप है। जो साउथ के एक्टर एक्ट्रेस है, वो लोग भी बड़े बजट की फिल्म बना रहे हैं और वो हिंदी बेल्ट में अच्छा कर रही है। बंगाली सिनेमा के साथ क्या दिक्कत है, क्यों बंगाली सिनेमा मेन स्ट्रीम नहीं हो पा रहा है? जबकि हम कंटेंट वाइज अगर देखें, मैं खुद बहुत सारे फिल्म देखता हूँ वहाँ बंगाली के, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, स्क्रिप्ट वाइज, एडिटिंग वाइज, क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा होता है, एडिटिंग अच्छा होता है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो बाजार जिसको हम लोग कहते हैं कि उसका एक तरीके से बाजारीकरण नहीं होता, उसकी मार्केटिंग नहीं अच्छे से होती है, या फिल्म उतना अच्छा पैसा नहीं बना पाती। क्या वजह है इसके पीछे? हम लोग बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे थे, बांग्लादेशी चोरकी, ओटीटी प्लेटफॉर्म चोरकी के बारे में बात कर रहे थे, बांग्लादेशी एक्टर एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे, जो पहले बांग्लादेश से बंगाल आया और बंगाल से बॉलीवुड आ गए, तो वो बांग्लादेश से बॉलीवुड तक आ गए, बंगाल से निकल के बॉलीवुड तक नहीं आ पा रहे। वैसे एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है, और टेक्नीशियंस है, म्यूजिशियंस है, ये सब है, इंडिविजुअल सक्सेसेस है, लेकिन नेशनल अवार्ड विनर ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है बंगाल खुद को इतना अलग कर लिया ना, तो वो कैलकाटा के ही बाहर नहीं जा पा रहा है, मैंने रेस्ट ऑफ बंगाल में ही नहीं जा पा रहा है।
बांग्लादेश में बांग्ला सिनेमा तो कोई नहीं देख रहा है, वेस्ट बंगाल का सिनेमा तो बांग्लादेश में भी नहीं देख रहा है वैसे, जितना आप मार्केट सोचिए ना, मार्केट साइज के हिसाब से सोचिए। बांग्लादेश में सब लोग बांग्ला बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में सारे लोग बांग्ला बोलते हैं। आप अगर ऐसा सिनेमा बनाए, ऐसे कंटेंट बनाए जो बंगाल और बांग्लादेश में सारे लोग, आपका तो बहुत अच्छा कमाई हो जाएगा। तो इंडिया तो दूर की बात है, आप अपने ही स्टेट में या अपने शहर के बाद, शहर के बाहर आप किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि आप आके हमारा सिनेमा देखो। आप बांग्लादेश में नहीं जा पा रहे, बांग्लादेश आपके पास आ गए अपना कंटेंट लेके, आप नहीं जा पा रहे, तो आप दूसरे लोगों को, दूसरी जगह इंडिया में जहां पे भाषा अलग है, कल्चर भी अलग है, कैसे जाओगे? कांतारा देखना चाहिए सबको, कांतारा देखना चाहिए सबको, क्योंकि केजीएफ बोलिए या बहुत कमर्शियल स्पेस में बहुत इंटरेस्टिंग सिनेमा है, या आप राजामौली के फिल्म्स बोलिए, लेकिन वो बहुत बड़े स्केल पे माउंट होता है वो सिनेमा, है ना, 200 300 400 शायद कांतारा उतनी बड़े बजट की फिल्म नहीं थी। कांतारा तो बहुत कम बजट की, 20-25 के बीच में, लेकिन वो चीज, और सोचिए ना कांतारा का स्टोरी क्या था, एक एकदम ही विलेज ट्रेडिशन, जिस ट्रेडिशन के बारे में, जो भूतकला, जिस ट्रेडिशन के बारे में शायद हम आप भी नहीं जानते थे ठीक से तो रेस्ट ऑफ इंडिया नहीं जानते थे। और क्या था, एक विलेज का कहानी, एक रोमांस और बफेलो रेस, हाँ, और विलेजर्स। सोचिए इतना रास्टिक एक कहानी पूरा इंडिया में सब लोग देखे, है ना, और कितना 500 400 500 करोड़ बनाया, और बहुत सराहा गया वो सिनेमा, सराहा गया सिनेमा, क्योंकि कंटेंट में दम था और ऑनेस्टी के साथ स्टोरी बोला गया। लेकिन मुझे लगता है, मैं सीरियसली बोलूं, ऐसा नहीं कि अच्छा काम नहीं होता बंगाल में, आई डोंट नो वेदर शर्मी विल एग्री विथ मी, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना ऑनेस्टी इन स्टोरी टेलिंग का कमी है, स्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि एक स्टोरी ना बहुत ऑनेस्टी के साथ आप जो बोलना चाह रहे हो, वे हम आएंगे ये दूसरा विषय पे, लेकिन मुझे लगता है कि आप जो बोलना चाह रहे हो बहुत शिद्दत से बोलो और बेझिझक बोलो, तो आप, मुझे लगता है कहीं ना उसका कमी हो गया बंगाल में। सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच की बात करता है, वही अपने बात फ्रीडम नहीं कर पा रहा है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ऐसे एक्सप्रेस तो नहीं कर पा रहा है कि पूरा बंगाल में ही लोग देखे। पहले तो बंगाल बिहार में, देखिए बिहार और बंगाल तो एक ही था ना, तो बिहार और कितना बंगाली सेंस बिहार में है ना, मैथिली इंटायर रीजन, और बंगाल बिहार का रिलेशन तो ठीक रहा हमेशा से। तो ऐसा नहीं कि जैसे बंगाल और बिहार में बहुत सारा, बिहारी और बंगालियों में बहुत सारा होता है छोटे लेवल पे, बट बहुत ज्यादा कल्चरल एनिमोसिटी है, ऐसा तो नहीं है। तो आप तो हमारा फिल्म देख लेते। बिहार बंगाल की आप बात कर रहे हैं, बिहार से देखिए, हिंदी एक लैंग्वेज का तो है, लेकिन फिर भी हम अगर कलाकारों की बात करें तो बिहार और यूपी से कई मनोज तिवारी, मनोज वाजपेयी हो गए, मान लीजिए पंकज त्रिपाठी हो गए, पहले भी बहुत ऐसे बड़े कलाकार हुए जो बहुत बड़े लेवल तक गए। इस तरीके से बंगाल का अगर उदाहरण देखें तो उन्होंने काम किया, बंगाली सिनेमा के लोगों ने हिंदी सिनेमा में भी काम किया, लेकिन उस तरीके से उनका स्टारडम नहीं हो पाया। एक तो वो एक्टर एक्ट्रेसेस का बात कर रहे हैं आप, और इवन डायरेक्टर्स, मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग सिनेमा बना रहे, लेकिन ऐसा फिल्म नहीं बना, क्रैक नहीं कर पा रहे जो क्रॉसओवर सिनेमा बने। एंड आई ऑल्सो फील जे कि उनका ना जो टॉपिक्स है वो लगभग एक ही टाइप का हो जा रहा है। जैसे मैंने एक और एक there's this, I saw this series called Indubala Bhater Hotel. It's a beautifully made series. You will feel the emotions, the pain of the person. But again, they show half the truth. If you're showing something related to the Hindu refugees who have come from East Pakistan and who were forced to live in West Bengal, you show what made them come, what forced them to flee their land, what forced them to live a life of desolation and desperation and poverty. But they've made it so beautifully. They've brought out the emotional quotient, but they have again monkey balanced on the political part of it, on the religious part of it. If they're showing they're glorifying the Naxalites, then they are showing that this woman who was from a refugee family gets married into a Bengali family in Calcutta, and the husband is a debauch. And she's facing a lot of problem, and she continuously, there's this constant narrative of
that we are different from them, they are different from us, we are not the same. There's this constant thing that goes on in your mind. Then when her family is killed, there is no mention of who is killing them, that the Pakistani army was killing them. When love affairs happen between a Muslim and a Hindu, Muslim guy and a Hindu girl, the girl is killed, and they monkey balance it by showing, the girl is killed, but the Muslim boy is also killed in some other affair. So, yes, Muslims were killing, Hindus were also killing, and so everybody was getting killed in the trauma of the partition. Now, when you are constantly doing that, I think in Bengal, people might be living blinkered lives and they might not be willing to accept that truth. But in other parts of the state, of the country, people know what had happened and they don't want to see this kind of monkey balancing hypocritical narratives anymore. I feel this is also a big problem. Yes, see, I think culture wars will always take place. In mainstream Hindi cinema, the upper caste Hindu has traditionally become a villain. Thakur. Every Thakur for very long time in mainstream Hindi cinema was a rapist, an alcoholic, and he is the villain against whom the hero has risen, attacked his kothi and finally rescued the woman, delivered justice, right? It is only now that people have started saying, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर ठाकुर रेपिस्ट है ना, और ठाकुर ही विलेन है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कल्चर वॉर्स तो होता ही है. मुझे लगता है कि और विथ टाइम न्यू नैरेटिव्स try to push back old narratives because they have been there for us for a considerable amount of time, want to stick to their want to put their foot down and say no, we are right. But I think one thing that needs to be talked about is skill. Whatever your narrative is, you have to learn the craft of storytelling. So there is a grammar of cinema you have to understand. Yeah. Okay, if you do not understand the grammar of cinema, then just peddling an ideology, you will obviously feel your ideology is right and the other person's ideology is wrong. But other person will have a hit film if he knows how to tell a story well. ये चीज आपको हाँ, तो कुछ देर के लिए, because politically India is at a certain space, mainstream politics is now completely, it's not to a large extent, not completely perhaps, but to a large extent has this one predominant narrative. Okay, our prime minister is extremely popular. BJP is a very powerful political formation. So people are culturally, also in the cultural cinema space, people are riding that wave. And some films are becoming hits. But if you do not know how to tell a story through cinema, you will fall on your face. And you will lose out on, and you will waste good subjects. You will waste good subjects. बहुत अच्छे subjects को एकदम, I'm sorry for saying this, कबाड़ा बन रहा है because of very bad storytelling. उस सब के बीच में जैसे 370 जैसे फिल्म आती है और बहुत अच्छा करती है. Yes. अगर हम लोग 370 की बात करें तो अभी मतलब जो पिछले दिनों में कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है जो एक तरीके से कहते हैं कि राइट विंग नैरेटिव को जो सूट करता है, उस पे जो फिल्म बनी है उसमें आर्टिकल 370 कह सकते हैं बेहतरीन बनी है, क्योंकि उसमें जिस तरीके से मुद्दों को समझाया गया. 370 इज अ कॉम्प्लिकेटेड इशू, ठीक है, जो लेकिन एक आम आदमी भी उस सिनेमा को देख करके उसकी बारीकियों को समझ सकता है. वो कह सकते हैं हम लोग 370 है वो सिनेमा. 370 इंटरेस्टिंगली देखिए, आपका अगर ये मानना है कि एब्रोगेशन ठीक नहीं था, वो तो अलग बात है, लेकिन आपको अगर ये लगता है कि एक कॉम्प्लेक्स इशू है, मुझे सिनेमैटिकली इसको बोलना चाहिए. 370 देखिए निशांत, 370 में किसी को विलेन, कोई कम्युनिटी को विलेन नहीं बनाया गया. 370 का जो हीरोइन है, शी इज अ कश्मीरी मुस्लिम वुमन हु कम्स टू वर्क फॉर द NIA, राइट. एंड कहीं ना कहीं पूरा पिक्चर और 370 होना उनके कंधे पे है, क्योंकि शी इज द वन हु टेक्स इनिशिएटिव. और तो दिखा पॉलिटिकली चीजें हो रहा था. दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ स्टोरी टेलिंग, जहां पे आपको जो बोलना है, आपका आइडियोलॉजी तो पक्का है क्योंकि आपको बोलना है कि एब्रोगेशन ठीक था, आप वो चीज भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं. आप हाँ, थोड़ा फिक्शनलाइज किया गया, एग्जैक्टली तो वैसे नहीं हुआ तो कैरेक्टर्स, लेकिन आपका जो पॉइंट है वो रख रहे हो, किसी को विलेन नहीं बना रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका और एंटरटेन भी कर रहे हो. दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ स्टोरी टेलिंग. वही Yes, दो लेकिन जो हाल के दिनों में बनी,
एक पृथ्वीराज चौहान, हाँ और जो भी बड़ा स्टार कास्ट था उसमें बहुत पैसा डाला गया, उसका प्रमोशन भी बड़े लेवल पे किया गया। एट द सेम टाइम आर्टिकल 370, दोनों सिनेमा में बहुत बड़ा अंतर है, जबकि दोनों के पीछे एक सोच है, दोनों सिनेमा के पीछे एक सोच है, लेकिन फिल्म मेकिंग सिर्फ, मेरा ये मानना है कि सिर्फ सेंटिमेंट को इनकैश करके आप बहुत दिनों तक किसी सिनेमा को नहीं चला सकते। उन मुद्दों को लेकर के बात नहीं। एक समय ऐसा आएगा जो लोग उस फिल्म को कैसे बनाया गया है, उसके स्क्रिप्ट को, उसके डायरेक्शन को, उसके प्रोडक्शन को, उसके एडिटिंग को, लोग उसको देखेंगे। ये दो जो फिल्में रही, दोनों Absolute. जैसे देखो 90s के दौर में कितने सारे मूवीज हैं जो वी कीप गोइंग बैक टू फॉर जस्ट द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। वी ऑल नो कि ये क्या दिखा रहा है, बगावत कर रहा है लड़की अपने पिता के खिलाफ लड़के के लिए, एंड कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं हो रही है, बस ईव टीजिंग चल रही है, ये सब। बट फिर भी वी गो बैक टू इट बिकॉज जस्ट we are entertained. So some of the films are really well made movies. Kayamat se Kayamat tak bolo, and there are so many other films. So cinema is a different ball game altogether. You have to get the story right, you have to get the dramatization right, you have to get the casting right. Without that everything falls flat. You might feel ki हाँ ये ideologically ये सही है, but the audience will not be gripped by those stories. एक और चीज दीप, मैं आप दोनों से ही इसको, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत ओटीटी जो है, ओटीटी ने एक आजादी दी लोगों को, काम करने की आजादी, जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो सिनेमा में आप नहीं लेके जा सकते थे। बहुत वो लंबा एक टाइम ड्यूरेशन भी होता था कि आपको 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, क्योंकि अब लोग बहुत लंबे सिनेमा भी, एक बीच में आया कि लोग अब लंबा सिनेमा नहीं देखते, मतलब 3 घंटे, 3.5 घंटे की मूवी भी है तो लोग सोचते थे कि इतनी लंबी मूवी है, लेकिन अभी लोग 10-10 घंटे का ओटीटी पे एपिसोड्स में आप वेब सीरीज देख रहे हैं। तो ओटीटी के आने से क्या बदलाव हुआ पूरे सिनेमा जगत में, कह सकते हैं एक फिल्म मेकिंग बिजनेस, या जो भी आप उसको कह लीजिए, कैसे बदला, इसके ऊपर आप दोनों बताएं। मुझे लगता है ओटीटी सिनेमा, मेनस्ट्रीम सिनेमा के लिए वही है जो सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया के लिए है। आपका स्पेस इतना डेमोक्रेटाइज कर दिया ना, और आपको सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान या अजय देवगन, अक्षय कुमार नहीं चाहिए। आप एकदम किसी को जानते, आपको हाँ बेटर टैलेंट, और एटलीस्ट वो स्पेस को आप खोल दिए, कोई भी कहीं से भी आके, अगर आप उसके एक्टिंग में दम है, उसके स्टोरी में दम है, तो आपको आप मूवी में इतने 2-2.5 घंटे के मूवी में आप उतना डिटेलिंग में नहीं जा, जैसे आर्टिकल 370 या पुलवामा अटैक या डिमोनेटाइजेशन के ऊपर जो अवरोध सीरीज आई थी, कितनी डिटेल्स में वो लोग दिखाया। सो यू आर इंस्टेंटली ग्रिप्ड कि अच्छा, it was not just the special forces who there was a lot of back-end work that was going on. मैं एक एग्जांपल लूँ इधर, पाताल लोक आपने देखा? पाताल लोक में एक सीन था जहाँ पे एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक मुस्लिम फैमिली जा रहे हैं, और व्हेन दे ओपन देयर लंच बॉक्स, तो उधर किस तरीके का मीट है, वेदर बीफ है, मटन है, इस पे बहस होता है, और दैट मैन गेट्स किल्ड। नाउ बहुत लोग राइट विंग की तरफ से बोले, और कि पूरा जो स्टोरी, आपका जो स्टोरी है, प्लॉट लाइन है, उसमें इस सीन का तो जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपने घुसा दिया बिकॉज यू हैव टू पेडल अ नैरेटिव। नाउ दैट वाज द क्रिटिसिज्म राइट फ्रॉम द राइट। लेकिन आप देखिए पाताल लोक कितना कॉम्पेलिंग स्टोरी है। तो आप अगर सोचिए, अगर उसका नैरेटिव था भी, आप उसको ऐसे डाले कि थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो, लेकिन सबने उस चीज़ को देखे। अभी इस चीज़ को आप घुमा दीजिए, हमारे अगर आपके तरफ कोई, आपके पास बहुत अच्छा स्टोरी है लेकिन आपको बोलना नहीं आता, तो आप तो नहीं कर पाए। फैमिली मैन कितना अच्छा स्टोरी है, कितना अच्छा फैमिली मैन में जो फैमिली मैन का जो लास्ट एपिसोड था, उसमें लव जिहाद को जो दिखाया प्रॉब्लम, ये तो बहुत अच्छे से दिखाया। किसी कम्युनिटी को विलेन नहीं बनाया, लेकिन कैसे दिखाया है ना। इनफैक्ट देयर आर टाइम्स व्हेन यू फील सॉरी फॉर द बॉय व्हेन ही जस्ट बिफोर ही इज गेटिंग किल्ड, आपको लग रहा है कि हाँ बट he has to do what he has to do। द मनोज वाजपेयी कैरेक्टर, उसको हंट करना है, उसको बेटी को उठा के लेके गया। तो आई थिंक स्टोरी तो आपको, आपका आइडियोलॉजी जो भी हो, आपको स्टोरी बोलना आना। I think the new breed of filmmakers need to learn that. Not all of them, but at least some of them. एक और चीज, ओटीटी के आने से एक कह सकते हैं कि वल्गैरिटी भी बढ़ी है, लेकिन एट द सेम टाइम गुल्लक,
पंचायत, इस तरीके के जो आप पोचर देखिए, बहुत सारे ऐसे बने जो मामला बहुत ही- लीगल है, मामला लीगल है, बहुत साफ सुथरा कंसेप्ट और कंटेंट के साथ, मतलब इतना बेहतरीन अदाकारी के साथ आप उस प्रोजेक्ट को ले जाते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि इस फिल्म में कुछ भी मिसिंग है। तो कह सकते हैं एक सेक्स सीन, या कह सकते हैं कि थोड़ा वल्गरिटी कितना, क्योंकि शर्मी बहुत अच्छे से मान लीजिए सिनेमा के ऊपर काफी लिखती हैं और फिल्म बहुत लंबे समय से लिख रही है, क्या वल्गरिटी या इस तरीके के जो सीन्स होते हैं, या क्या ये स्क्रिप्ट की जरूरत है, या इसको ऐसे ही मतलब मैं आपसे भी सुनूंगा इसके ऊपर दीप। So I feel that this whole vulgarity situation arises when the writing doesn't have enough weight. Many times, sometimes it might be necessary. एक plot में शायद ज़रूरत हो, but अगर आप बॉलीवुड की most of the productions आज देखोगे, वो मजा ही नहीं है. So they need that vulgarity. जैसे गुल्लक, पंचायत, मामला लीगल, you don't need, because this writing is so crisp, the characters are so relatable. उसमें vulgarity, कितना मजा आता है देखे. I would say this category of productions remind me of Hrishikesh Mukherjee's and Basu Chatterjee's works. Similarly, like these, you instantly relate to them. They are very India stories. You think कि हाँ ये मेरी बुआ तो ऐसी है, मेरे चाचा जी तो ऐसे हैं, वहाँ पे अब बुआ और चाचा जी तो वैसे मतलब वल्गर कपड़े तो पहन नहीं रहे हैं. In Bollywood, if you see, certain stories are still interesting, but you just lose interest after a certain point of time because there's no hook. वो हुक ही नहीं है, बस कुछ रैंडम चीजें हो रहे हैं, and there's this forced trying to force something, but I think it's all about the writing. Yes, Bandit Queen में फुल फ्रंटल न्यूडिटी था, लेकिन जब वो सीन आप देखते हैं, आपको उस औरत, उस कहानी का हॉरर समझ में आता है, आपको टिटिलेशन नहीं होता, आपको लगता है आप देख नहीं पाते, है ना. हम सब शॉक्ड हुए थे जब वो सीन के जो पर्टिकुलर सीन था. इट्स ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग, है ना. आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ पे शायद स्टोरी के लिए आपको न्यूडिटी का जरूरत, नॉट नेसेसरली ऑन अ सीन लाइक दिस, इट कैन बी अ लव सीन, बट यू नो सिनेमा इज सच अ मीडियम where you can't fool the audience. Audience आपको पकड़ लेगा. जो भी आपका ideology हो, जो भी आपका story telling technique हो, ultimately audience will decide whether it is आप खरे उतरे कि नहीं, you know, in what you're in your endeavor. तो आप बहुत मेहनत कर सकते हैं, आप बहुत चीज़ें डाल सकते हैं सिनेमा में, लेकिन at the end of the day, if a film is being watched by lots of people, मतलब आप जो बोलना चाह रहे हो कहीं ना कहीं लोगों को हिट किया, तो अलग से ना कुछ चीज आपको अगर कर रहे हो, वो न्यूडिटी हो या आइडियोलॉजी हो, न्यूडिटी हो, नैरेटिव हो, आप उस पे बेसिस पे सिनेमा मत बनाइए. आप इसको एज अ होल देखिए. नैरेटिव इज एज प्रॉब्लमेटिक एज न्यूडिटी इफ इट इज प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि आप अगर स्टोरी नहीं बोलना आ रहा है आपको, आप आर्टिकल 370 की बात किए, आप यही पिक्चर कितना फ्लॉप हो सकता था. अब लोग उठ के चला जाता फिल्म हॉल से, है ना, कि क्या बनाया है, इतना बोरिंग लग रहा है. जो वही लोग शायद चीयर किया जब एब्रोगेशन हुआ, वही लोग सिनेमा हॉल को 15-20 मिनट, आधा घंटा या बोलता जाके अरे इतना बोरिंग पिक्चर है, लेकिन आपने देखा क्योंकि आपको स्टोरी अच्छा लगा. तो कभी कभी जैसे सोचिए कुछ फिल्म उस पर बात ही नहीं हुआ, सडनली वो फिल्म आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप शायद उतना बारीकी से नहीं देखते, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो आप देखोगे पिक्चर. आप तो एक ही तो फिर तो पॉलिटिकल पार्टी सिनेमा बनाते हैं ना, तो उनको तो उनके लिए तो आईटी सेल को सारे पॉलिटिकल पार्टीज का वो फिर प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं फिल्म मेकिंग. मैं आज सुबह, निशांत, एक चीज बोलना चाहता हूँ. आज सुबह आई वॉज वॉचिंग अ रील, परेश रावल वॉज टॉकिंग अबाउट नसीरुद्दीन शाह, and in a recent show, अभी का वीडियो है, and he was talking about नसीरुद्दीन शाह the actor, और इतना रेस्पेक्ट से बात कर रहा था. यही परेश रावल शायद
अगर नसीरुद्दीन शाह का कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट बुरा लगे उनको क्रिटिसाइज करेंगे, और करना भी चाहिए, जैसे नसीरुद्दीन शाह को भी चाहिए परेश रावल को क्रिटिसाइज करें अगर उनको ऐसा लगे तो। लेकिन व्हेन परेश रावल वाज टॉकिंग अबाउट नसीरुद्दीन शाह द एक्टर, उन्होंने बोला कि जो अगर ये बंदा एक्टिंग को मैंने घोल के पी गया, तो बोला कि ये तो सिर्फ देख के सीखने का बात है। लेकिन आप अगर सोचिए, आपको नसीरुद्दीन शाह फैन हो सकते हैं, आप नसीरुद्दीन शाह का नहीं हो सकते, है ना, लेकिन आपको तो उनके एक्टिंग में जो माएस्ट्रो है ये तो मान, और वो बदला भी ना। आप देखिए पहले मतलब गुड लुकिंग हीरो चाहिए। Yes. मान लीजिए कि मनोज तिवारी को अगर पहले आप देख लेंगे, पंकज त्रिपाठी को सॉरी मनोज बाजपेयी को देख लेंगे, क्या कहते हैं, आप पंकज को देख लेंगे, आप इसको क्या नाम है, Manoj Bajpayee is intelligent looking. नहीं तो दैट ही इज ये नसरुद्दीन Yes. क्या नाम है उसका, सिद्दीकी, क्या नाम है उसका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। अब आप अब आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट करने के लिए आपको बहुत 6 फीट लंबा 6 पैक जी। आप सावरकर देखिए, सावरकर में हाँ अच्छा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को चुना गया था और उन्होंने करा भी बाल ठाकरे का कैरेक्टर। तो सोचिए ना, उनके क्राफ्ट में इतना, सोचिए कहीं ना कहीं आयरॉनिकल भी है, लेकिन उनके क्राफ्ट में इतना दम है कि आपको ये नहीं लगा कि कोई मुस्लिम एक्टर को ये कैरेक्टर नहीं देना चाहिए। वैसे तो we can go on and on talking about these topics because these are topics that come naturally to us, but somehow we need to call it the end. But thank you so much for talking to us. But I want to ask last thing that when you are writing your new book. New book, I don't know, but next project is dependent on you. Whenever you decide to make the leap from book to cinema, Yeah. We will do it soon. Yeah. Thank you, Deepta, for joining us. Thank you for giving us time in your busy schedule, and thank you for watching. Bye bye.